Morning students. Today's topic is combating drunken driving. Means how to face the drunken driving. ठीक है. Now, in recommending tougher penalties for drunken driving, the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture has underlined the imperative of an urgent response to an intensifying national problem. ठीक है. क्या कहा गया है कि इन रिकमेंडिंग दैट इज़ वेरियस टफर पेनल्टीज. ठीक है. फॉर ड्रंकन ड्राइविंग के लिए वेरियस टफर पेनल्टीज जब रिकमेंड की गई, देन व्हाट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर हैज़ अंडरलाइन द वेरी इम्पॉर्टेंट और very needing immediate attention or action of an urgent response to the intensifying, that is increasing national problem. That is this is one of the uh, national problem which is increasing on a very fast rate, in a very rapid way. Vehicle ownership and alcohol consumption are both on the rise in India. ठीक है. जैसा अगर हम देखें कि जैसे जैसे व्हीकल की ओनरशिप, मतलब लोगों के पास पहले साइकिल हुआ करती थी, फिर दे यूज टू हैव दी टू व्हीलर्स, नाउ दे आर हैविंग फोर व्हीलर्स. तो जैसे जैसे ओनरशिप बढ़ रही है वैसे वैसे ही अल्कोहल का कंजम्पशन भी इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है. वाइल द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्स एंड टू व्हीलर्स इज़ अ विजिबल आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. जो अगर हम देखें तो जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कार्स एज वेल एज टू व्हीलर्स है, ये दिखता है कि हाउ इकोनॉमिकली वी आर ग्रोइंग अप, ये विजिबल है. राइजिंग एल्कोहल कंजम्पशन इज़ नॉट सो एविडेंट, बट ये इस चीज़ का पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहा है दैट राइजिंग एल्कोहल कंजम्पशन, इट इज़ नॉट सो मच एविडेंट. The National Family Health Survey data for 2005 and 2006 indicates that a third of the male population consumes alcohol. जो डेटा है दैट इज़ ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा फॉर 2005 एंड 6, ये सर्वे इंडिकेट करता है कि जो हर तीसरा मेल है हमारी पॉपुलेशन का, इट कंज्यूम्स एल्कोहल. And the alarming increase in youngsters taking to alcohol at high levels. ठीक है. और जो बेसिकली ये देखा गया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, दे आर टेकिंग अल्कोहल्स at a very high level, and which aggravates, which makes a bad or unpleasant situation, even we call it as worse, and the risk for all age groups compared to sober drivers. ठीक है. It create a huge risk for all the age groups which we compare to the sober drivers who are not taking alcohol and the things like that. Equally significant is the survey finding that drunken driving tends to get repeated. और इसी चीज़ से, इसी सर्वे से we are finding that जो drunken driving है it gets repeated. ठीक है. every year इसका जो रेशो है कुछ ना कुछ बढ़ के ही मिलता है. Given this context, there is considerably merit in the parliamentary committee's recommendation for stiffer penalties made in its report on a bill to amend the Motor Vehicle Acts. And after considering it, given in this context कि भैया ड्रंकन ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पीपल यूज टू ड्रिंक एंड ड्राइव, तो जो पार्लियामेंट है इट क्रिएटेड अ मोटर व्हीकल एक्ट. उसके अकॉर्डिंग दे चार्ज सम ऑफ द पेनल्टीज टू द people who just drink and drive. It has suggested prosecution for culpable homicide not amounting to murder where drunken driving cause death. ठीक है. It has suggested, जो एक्ट है, जो बिल पास हुआ था, it suggested that prosecution for culpable homicide means they are the who to whom we blame for the murder not amounting to murder where drunken driving cause death. हमें पता है that कि जो because of the drunken driving just various things are possible, like accidents हो सकते हैं. ठीक है. they cause death to someone. ठीक है. सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, लाइक कि
अगर उस बिल में इट मीन्स जो मोटर व्हीकल्स एक्ट था उसमें कुछ चीज़ें अमेंड की गई थी, ठीक है, उस अमेंडमेंट में था दैट दे आर द वन हु जस्ट कॉजेज डेथ, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ली गई, लाइक सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, उन लोगों का जो लाइसेंस है वो क्या कर दिया जाए, वो लाइसेंस उनका कैंसिल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, escalating fines and or imprisonment based on blood alcohol percentage, और क्या किया जाए, जो उनका लाइसेंस है वो रद्द कर दो, कुछ उन पे फाइन्स लगा सकते हैं, प्लस एज वेल एज हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, उनको जेल में बंद कर सकते हैं जस्ट फॉर बाय चेकिंग देयर alcohol percentage in their bloods, and mandatory in imprisonment beyond a specified blood alcohol limit, और अगर एक जो हमने लिमिट सेट कर रखी होती है उस बिल में, अगर उससे ज़्यादा मिलता है अगर अल्कोहल का परसेंटेज, तो देन दैट पर्सन मस्ट बी imprisoned with provision for license cancellation as well as their license must be cancelled. Under section 185 of the Motor Vehicle Act 1988, that is 1988, drunken driving attracts a penalty of fine or imprisonment or both, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन ऑफ 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अगर ड्रंकन ड्राइविंग है कर रहा है इंसान, तो इसकी जो पेनल्टी है इट इज़ मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइन और इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या दोनों, ठीक है, दोनों कर सकते हैं. द प्रॉब्लम रियली लाइज इन द palpable lack of will to enforce this important section and is compounded by the fact that revenue hungry states, some of which went liquor through, लेकिन ये इस चीज़ का जो जो मेन प्रॉब्लम थी, द मेन प्रॉब्लम रियली लाइज इन दी palpable lack, palpable that is easily noticed by the mind or the senses, ठीक है, it is that it is the lack of will, इच्छा नहीं है to enforce this important section, इस पर्टिकुलर सेक्शन को एनफोर्स करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई दी, ठीक है, लैक ऑफ जस्ट सम ऑफ देम सेल लिक्वर, सम ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो बेचती हैं इस अल्कोहल को थ्रू द गवर्नमेंट आउटलेट्स. अब कैसे इन चीज़ों पे लगाम लगी जाएगी, इफ़ दे हैव बीन सेल्ड बाय द गवर्नमेंट आउटलेट्स ओनली. अपीयर डिसिप्लिन टू टेक टफ स्टेंसेस ऑन दिस कॉज. Maybe some lack of equipments also. जो पुलिस टीम्स होती हैं on city roads as well as on highways, they need some of the equipments to determine whether a driver जो है उसने consume कर रखा है alcohol in excess of the legal limit, that is of 30 mg per 100 milliliters of blood. अगर ये है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, otherwise the police will charge fine or they will send them to the jail also. Now, determining varying blood alcohol levels starting with 30 mg and going beyond 150 mg as suggested by the parliamentary committee will be even more of a challenge. ठीक है, जो देखा गया है कि जो अल्कोहल का परसेंटेज है इट स्टार्ट विद द 30 mg एंड इट गोज़ बियॉन्ड द 150 mg, ठीक है, एज सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटी. It is also one of the major challenge. Moreover, any amendment to improve the working of the Motor Vehicle Act can be meaningful only if a national traffic and transport database is created for recording offences. ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, कोई भी चेंजेस किया जाता है, तो इफ़ वी वांट इट्स वर्किंग टू बी इम्प्रूव्ड, तो उसके लिए क्या होगा, और वो मीनिंगफुल तभी होगी जब हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसका डेटाबेस बनाए, या जितने भी ऑफेंस रिकॉर्ड हो उनका हम डेटाबेस बनाएं, उनको प्रॉपरली कवर करके रखेंगे, सो दैट मान लो आज यहाँ से कोई छूट के निकल गया तो आगे जाके वो पकड़ा जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटाबेस. उसका एक पिछला रिकॉर्ड होगा कि यार द पर्सन इज़ यूज टू हैविंग द अल्कोहल. Of utmost importance is the integrity and professionalism of which the vehicle licensing and traffic enforcement process, which is abysmally low. All these aspects need remedial action before any headway can be made with an amended law. तो
सिर्फ ये कहा गया है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इज़ द इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द व्हीकल लाइसेंसिंग। देखा जा रहा है आजकल की जो लाइसेंस है वो किसी को भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर चेकिंग, विदाउट एनी पर्टिकुलर गाइडलाइंस, विदाउट फॉलोइंग दी पर्टिकुलर गाइडलाइंस। अब यहाँ ये कहना है कि अगर वी वांट कि ये सब चीज़ें रोके तो हमें स्ट्रिक्ट कहाँ पे होना होगा, वाइल वी इशू दी लाइसेंस, ठीक है। और जो जितने भी ट्रैफिक एनफोर्समेंट होते हैं, इट विल कम टू एन अ प्रोसेस, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन है लाइसेंस इशू करने की। नाउ डेज वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स नीड रेमेडियल एक्शन बिफोर एनी हेडवे। तो ये कहा गया है कि जितने भी ये एस्पेक्ट्स हैं दे मस्ट नीड एक रेमेडियल एक्शन होना चाहिए उनके प्रोग्रेस के पहले, ठीक है। एंड कैन बी मेड विद द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। जैसे ही लॉ का अमेंडमेंट होता है वैसे ही इन एस्पेक्ट्स का, वैसे ही इन लीगल एक्शंस का भी अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।